Hello friends, this is Anil Chahar, your educator, mentor, welcoming on Electronic Academy Education. Today we are going to start the next lecture of communication system. As in previous lecture, we already discussed the need of modulation and the basic concept of the communication. Okay, now today we will continue that topic, that is the modulation. Okay, need of modulation already we discussed. So what is modulation basically? Okay, now modulation is the process by which the characteristic parameters of the carrier signal, that is characteristic parameter of the carrier signal are the amplitude, frequency and phase. If the amplitude, frequency and phase of carrier signal is varied according to the variation in the message signal amplitude, then this process is known as the modulation. Got it? Okay, now there are two types of modulation. One is the single tone modulation and another one is the multi-tone modulation. Here tone is representing the frequency component, number of frequency. Okay, tone basically it is representing the frequency. If I am doing a single tone modulation, it means the message signal having only the single frequency component. Like if my message signal is m of t equal to am cos of 2 pi fm into t. Here the message signal frequency is fm and this is the single frequency component. So this single tone modulation will have only the single frequency. In multi-tone में the message signal will have the multiple number of frequency components. If I am saying the message signal is multi-tone and if I am representing its spectrum, then it will showing like this. Okay, if it is omega, then this is minus omega and 0 ये frequency, and this is the spectrum of message signal which having the multiple number of frequency. तो मैसेज सिग्नल की मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, अगर इन मैसेज सिग्नल मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रखेगा तो स्पेक्ट्रम विल आल्सो रिप्रेजेंट द मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो हियर दीज आर द मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. और अगर मैं इस मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ की बात करता हूं तो मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ यहाँ पर क्या हो गई? ओके, जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका हूं. सो मैसेज बैंडविड्थ इक्वल टू highest positive frequency omega minus lowest positive frequency is 0, that is the message bandwidth is omega. Okay, तो यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे जिसमें 0 to ओमेगा तक मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे. एम्पलीट्यूड की बात करते हैं. ओके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा? कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड के वेरिएशन के साथ वेरी करेगा. लेट मेरा मैसेज इज mt एंड द कैरियर सिग्नल इज ac cos 2 pi fct. ओके, तो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? ac है. ओके, तो अगर कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरीज अकॉर्डिंग to message signal amplitude, then this is known as amplitude modulation. Or general expression of AM signal as I calculated, or general expression is SAM into T equal to AC into 1 plus का KAMT into cos 2 pi FCT, where K representing the amplitude sensitivity of AM modulator. Basically it is a constant. और जो ये SAMT है ये modulated signal है. ओके, तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल. और जब मैं ये कह रहा हूं मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो मैसेज सिग्नल इटसेल्फ नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल एक ही बात बोल रहे हैं. तो के एक एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी कांस्टेंट है. ओके, यहां मैं मल्टीटोन एम्पलीट्यूड एम की बात कर रहा हूं, तो मैसेज सिग्नल विल हैव मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द मैसेज. ओके, तो यहाँ जिसका स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट किया जाएगा लाइक दिस. So the message bandwidth is highest positive frequency minus lower positive frequency is omega. अगर मैसेज सिग्नल को मैं मॉड्यूलेटिंग कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज करके ट्रांसमिट करूंगा थ्रू द ट्रांसमीटर और मॉड्यूलेटर, देन द मैसेज सिग्नल विल रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. तो एम सिग्नल का यहाँ टाइम डोमेन में है और जो ये मैं स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी कि इसका मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लेकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो जब मैं टाइम डोमेन सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड स्पेक्ट्रम, देन फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये हो जाएगा.
क्योंकि जैसे अगर मैसेज सिग्नल मेरा एमटी है और कैरियर सिग्नल एसी कोस टू पाई एफ सी, तो एसएम इंटू टी क्या हो जाएगा, ये वाला कैरियर सिग्नल। अगर मेरा कैरियर सिग्नल की जो, अगर मैं बेसिक एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं ओनली, तो अगर मेरा कोस है तो ये मेरा कैरियर सिग्नल है। ओके, ये मेरा कैरियर सिग्नल है। और मैसेज सिग्नल, अगर मैं सिंगल टोन में मैसेज सिग्नल की बात कर रहा हूं, लेट माई सिंगल टोन मैसेज सिग्नल एम टी इक्वल टू ए एम कोस ऑफ 2 पाई एफ एम इंटू टी। ओके, तो कैरियर मेरा सिंगल टोन का जो मैसेज सिग्नल है वो भी ऐसा ही आएगा। तो जो एम्पलीट्यूड, ओके नाउ देखो, अगर मेरी कैरियर सिग्नल इज लाइक दिस, तो एसी इसका जो पीक एम्पलीट्यूड विल बी द एसी एन माइनस एसी। अगर मेरा मैसेज सिग्नल एक साइनसोइडल सिंगल टोन मैसेज सिग्नल है, देन इट्स पीक एम्पलीट्यूड इज एम एंड माइनस एम। सो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल बी एसी इंटू 1 प्लस का के एम, ओके, इंटू कोस ऑफ 2 पाई एफ एम इंटू टी इंटू कोस ऑफ 2 पाई एफ सी इंटू टी। नो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करूंगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स से पहले कि दिस इज द मॉड्यूलेशन मैक्सिमम ऑफ के एम इंटू कोस ऑफ 2 पाई एफ एम टी, दैट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी मैक्सिमम ऑफ के एम टी मैक्स। सो अगर साइनसोइडल सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सिंगल टोन मैसेज सिग्नल यूज कर रहा हूं तो के एम मैक्सिमम हो जाएगा, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, नाउ देखो, अगर मैं उसका मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस एम टी का अगर मैं स्पेक्ट्रम क्रिएट करना चाहता हूं तो स्पेक्ट्रम विल बी लाइक दिस। ये तो मैंने सिंगल टोन के लिए बात की थी, यहाँ पर मैं मल्टीटोन सिग्नल लेकर बात कर रहा हूं। तो मल्टीटोन के लिए जो बैंडविड्थ होगी ओमेगा, तो जो मल्टीटोन अभी मैंने मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी यूज की बताई थी लास्ट लेक्चर में, फोरियर ट्रांसफॉर्म की मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, इन विच इफ आई एम टी इंटू कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी अगर मल्टीप्लाई करके उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो ये क्या होता है, एम ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एम ऑफ एफ प्लस का एफ सी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी of the Fourier transform. Now this property is used here. ये प्रॉपर्टी यूज करके मैंने ये जो स्पेक्ट्रम क्रिएट किया, तो एफ सी इसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी होगी, तो एफ सी प्लस ओमेगा एंड एफ सी माइनस ओमेगा। हियर जीरो से ये नेगेटिव पार्ट भी आता है, तो जब भी बात करते हैं, ओके, तो जो ये एफ सी से अबव जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है एफ सी टू एफ सी प्लस ओमेगा, दिस इज नोन एज अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, एंड एफ सी से बिलो वाले एफ सी माइनस ओमेगा टू एफ सी तक लोअर साइड बैंड। Similarly in negative frequency also upper side band and lower side band, and this is the at fc equal to the carrier frequency component. तो carrier frequency component अगर मैं एक जो इसकी जो जनरल एक्सप्रेशन है वहां से अगर इसको रिप्रेजेंट करूं सिग्नल की, जो ये कैसे आई, तो देखते हैं, एस ए एम टी इक्वल टू ए सी इंटू कोस 2 पाई एफ सी टी, ओके, प्लस AC K into M of t into cos of 2 pi FC t. Okay, now on solving, okay, on taking this Fourier transform of this message signal, modulated signal, sorry, not message signal, modulated signal, we will get AC by 2 at FC and एफ सी प्लस ओमेगा और एफ सी माइनस ओमेगा की बात करेंगे, तो ये स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है। नाउ बैंडविड्थ की बात करता हूँ। बैंडविड्थ क्या होती है, वही हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी इज एफ सी प्लस ओमेगा, लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी इज एफ सी माइनस ओमेगा। सो द डिफरेंस बिटवीन एफ सी प्लस ओमेगा माइनस एफ सी माइनस ओमेगा इज, ओके, नाउ एफ सी प्लस ओमेगा माइनस ऑफ एफ सी माइनस ओमेगा। ओके, ये ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस का एफ सी प्लस का ओमेगा, so fc to fc cancel out हो जाएगा and bandwidth will become 2 omega. That is the amplitude modulated signal will have the bandwidth is 2 times of message signal bandwidth, because message signal bandwidth itself is omega, so 2 omega is 2 times of message signal.
This is the regarding the amplitude modulated signals bandwidth, or in terms of multi-tone amplitude modulated signal. If we are going to use a single tone frequency message signal, then the AM bandwidth will be the 2 times of the single band frequency FM, 2 times of मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओनली, क्योंकि वहां पर जब मैं सिंगल टोन की बात करता हूं तो उसकी बैंडविड्थ कुछ नहीं रहेगी, बैंडविड्थ विल बी 0. सो हियर इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओनली इन द सिंगल टोन, दैट इज द FM. सो 2 टाइम्स ऑफ FM. नाउ दिस इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स विच ओके. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, KMT का मैक्सिमम पार्ट होता है. अगर MT इज ए साइनोसॉइडल सिग्नल, देन मैक्सिमम ऑफ MT इज AM ओनली, because sinusoidal signal, whether it is a cosine or sine, maximum value will be the AM only. So modulation index will be KAM when maximum. But if K is not given, by default की बात करता हूँ, by default modulation index is AM by AC. This is by default. Okay, this is regarding modulation index. एंड दिस इज, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल मॉड्यूलेशन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिंपली परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये कभी ये नहीं बताएगा कि कितना मैसेज स्टोर हो चुका है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में. मॉड्यूलेशन इंडेक्स नेवर टेल्स हाउ मच मैसेज इज स्टोर्ड इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. Okay, got it? Okay, तो modulation index mu into 100 is percentage of modulation of depth of modulation. Practically mu is less than equal to 1 यूज करते हैं प्रैक्टिकली फिजिबल केसेस के लिए, क्योंकि mu less than 1 के लिए अंडर मॉड्यूलेशन, mu equal to 1 क्रिटिकल मॉड्यूलेशन एंड mu greater than 1 is ओवर मॉड्यूलेशन. फॉर एनवेलप डिटेक्शन मॉड्यूलेशन विल बी शुड बी mu less than equal to 1 होना चाहिए. ओके, मॉड्यूलेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, 0 to 1 के बीच में प्रैक्टिकली यही फिजिबल होता है, बिकॉज एनवेलप डिटेक्शन ओवर मॉड्यूलेशन के लिए पॉसिबल नहीं हो जाएगा. 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ जाएगा और वो जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके शो करने ले जाएगा. एनवेलप डिटेक्शन विल रिप्रेजेंट द पीक एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन आ रहे हैं ना, वो पीक एम्पलीट्यूड की फॉर्म में स्टोर करता है. ओके, दिस इज रिगार्डिंग द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, नाउ पावर ऑफ AM की बात करते हैं. नाउ टोटल पावर ऑफ AM, बिकॉज अभी जो AM सिग्नल की बात की थी मैंने, तो SAMT इक्वल टू होता AC इंटू 1 प्लस KAMT इंटू कोस टू पाई FCT. AC इंटू कोस टू पाई FCT इज वी ऑलरेडी कंसिडर इट इज एज ए कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल CT प्लस का AC KMT. ओके, नाउ दिस इज यूजफुल पार्ट. दिस इज कैरियर सिग्नल. कैरियर केवल उसको जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था मेरा मैसेज सिग्नल, उसको उस पर कैरियर पर बैठकर लास्ट में रिसीवर तक पहुंच जाता है, बाद में तक पहुंचा रहा है. बट ये कभी भी मैसेज ना तो रिसीवर तक पहुंचता है ना मैसेज ट्रांसमीटर के बीच में रहता, तो ये यूजफुल पार्ट नहीं होता है. केवल जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का जो पार्ट होता है वो होता है यूजफुल पार्ट. तो टोटल पावर की बात करूंगा तो कुछ पावर कैरियर को ट्रांसमिट करने में भी यूज होगी एंड साइड बैंड पावर. एज ए कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज ए साइनोसोडल सिग्नल, AC सिग्नल. जब भी अगर पावर की बात करूं तो टोटल पावर क्या होगी, कैरियर सिग्नल पावर, अपर साइड बैंड पावर एंड लोअर साइड बैंड पावर ऑफ द AM सिग्नल. टोटल पावर ये होगी. तो लेट माय मैसेज सिग्नल whose amplitude is VM, then its DC power will be VM square by R. R is a resistance. Okay, लेकिन अगर YT इक्वल टू VM cos टू y FCT, F नोट और FCT, F नोट है, तो AC पावर क्या होती है, VRMS स्क्वायर अपॉन R होती है, और VRMS इक्वल टू होता है पीक एम्पलीट्यूड बाई √2. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है कि उसका स्क्वायर करो, उसका रूट लो और उसका मीन निकालो और रूट ले लो लास्टली, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर. तो VM बाई √2 होता है, तो VM बाई √2 पुट करने पर VRMS की वैल्यू तो VM स्क्वायर बाई 2R होता है. ये AC पावर होती है. सो दैट कैरियर सिग्नल इज AC सिग्नल
ओके, AC cos 2 pi XCT साइनोसॉइड सिग्नल होता है, तो PC इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2R एंड द अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आल्सो AC म्यू, क्योंकि म्यू को मैंने अभी बताया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स KAMT का मैक्सिमम होता है, तो KAM इंटू AC बाई 2 आ जाता है वहां पर, तो AC म्यू बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका पीक एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा AC म्यू बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2R। सिमिलरली फॉर so on solving this we will get like this AC square mu square upon 8R. This is the upper side band power or lower side band power. Now total side band power क्या होती है, lower side band power प्लस का total side band power की बात कर रहा हूं, तो वो क्या होती है upper side band power प्लस का lower side band power. This is the total of side band power. Okay, तो side band power equal to AC square mu square by 4R. Like AC square by 2R is a PC, that is the carrier power. So AC square by 2R represented by PC, so PC mu square by 2 become the sideband power. तो टोटल पावर की बात करते हैं, टोटल पावर क्या हो जाती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी पावर प्लस का कैरियर सिग्नल को प्रोपोगेट करने के लिए पावर इज कैरियर पावर एंड द साइडबैंड पावर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय 2R प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 4R. तो AC स्क्वायर बाय 2R टेकिंग ऑन कॉमन वी विल गेट 1 AC स्क्वायर बाय 2R इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 एंड AC स्क्वायर बाय 2R इज ए PC, that is the carrier power. So this can be represented by P total equal to PC into 1 plus का mu square by 2. This is the amplitude modulated signals total power. Okay, now on observing that we will observing that the carrier signal in transmitting the carrier signal also the some power is consumed. Okay, so this is the major drawback of the amplitude modulated signal, that is the maximum power is wastage in transmitting the carrier signal only. When we will observe that is mu equal to 1, that is or 100% on 100% modulation, also the carrier the sideband power is only 33.33% and the carrier power will be the 66.67%. The maximum power is wasted in transmitting the carrier only, that is the maximum power is wastage. This is the major drawback of the amplitude modulated signal, because in carrier को transmit करने में maximum power lost हो जाती है. The useful power only is the sideband power, that is the 33.33% power is useful only. Now notice that carrier power is independent of modulation index, but as a modulation index increases, the sideband power and the total power of amplitude modulated signal is increases. Okay, जैसे जैसे modulation increase करेंगे, जैसे unmodulated signal it means the modulation equal to 0. Okay, if mu equal to 0, then imply that this is unmodulated signal, यानी कि मैंने कोई मॉड्यूलेशन किया नहीं है. और अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी कि मैंने केवल कैरियर सिग्नल को पास किया, तो टोटल पावर इज कैरियर सिग्नल पावर हो जाएगी, क्योंकि म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0, तो एम्प्लाई दैट पी टोटल इक्वल टू PC ओनली. बट व्हेन मॉड्यूलेशन इक्वल टू 100%, यानी कि मॉड्यूलेशन विल म्यू इक्वल टू 1. ओके, तो 1 प्लस 1/2, तो टोटल पावर इक्वल टू 3/2 ऑफ PC हो जाएगा. तो similarly as mu increases from 0 to 1, then total amplitude power increased by 50%. ओके, पहले टोटल पावर जन अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की टोटल पावर कितनी थी, PT इक्वल टू PC, when mu इक्वल टू 1, द PT इक्वल टू 3/2 ऑफ PC. ओके, 3/2 ऑफ PC. सो इंक्रीज्ड PC कितनी हो गई, P टोटल, सॉरी PC नहीं, टोटल पावर इक्वल टू 1/2 PC, दैट इज द 50% इंक्रीमेंट हो चुका है. तो यही इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया कि मॉड्यूलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, द टोटल पावर इंक्रीज्ड बाय 50%. Okay, issue of AM modulated signal and amplitude modulated signal. Efficiency represented as the useful power
डिवाइडेड बाय टोटल पावर। अभी मैंने जब बताया पीछे बताया था कि यूजफुल पावर ओनली साइड बैंड पावर यूजफुल होती है, वेदर इट इज अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। द टोटल साइड बैंड पावर इज यूजफुल पावर। द पावर इन ट्रांसमिटिंग द कैरियर सिग्नल ओनली इज वेस्टेज ऑफ द पावर दैट इज नॉट यूजफुल। सो यूजफुल पावर ओनली द साइड बैंड पावर। सो साइड बैंड पावर यूजफुल हो गई तो साइड बैंड पावर कितनी होती है, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4R, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं PC इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2, ओके, एंड R अपॉन द टोटल पावर इक्वल टू होता है PC इंटू 1 प्लस का म्यू स्क्वायर बाई 2। हियर R ऑलरेडी इसमें आ चुका है, ओके। सो नाउ PC से PC कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का म्यू स्क्वायर। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल। Got it? Now this is important thing। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये साइनोसॉइडल सिग्नल को एज्यूम करके बात कर रहा हूँ। दिस इज द एफिशिएंसी। जैसे अनमोडुलेटेड सिग्नल एन अनमोडुलेटेड AM पावर इज गिवन बाय 2000 वाट। ओके, अनमोडुलेटेड इंप्लाई दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू 0। ओके, अनमोडुलेटेड सिग्नल है, ओके, अनमोडुलेटेड यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू 0, यानी कि जब वह म्यू इक्वल टू 0, इफ म्यू इक्वल टू 0 एम्प्लाई दैट PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस का म्यू स्क्वायर बाई 2, दिस इज द टोटल पावर। ओके, बट म्यू इक्वल टू 0, सो एम्प्लाई दैट P टोटल इक्वल टू PC ओनली इक्वल टू 2000 वाट्स, यानी कि कैरियर पावर कितनी दे रखी है अपने को, 2000 वाट्स दे दी। फाइंड AM पावर विथ 100% मॉड्यूलेशन दैट इज म्यू इक्वल टू 1। सो व्हेन म्यू इक्वल टू 1 तो P टोटल इक्वल टू होता है PC इंटू 1 प्लस का म्यू स्क्वायर बाई 2। सो PC इज 2000 वाट इंटू 1 प्लस का मॉड्यूलेशन इज 1 बाई 2 दैट इज 2000 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1000 दैट इज 3000 वाट टोटल पावर हो गई। दिस इज द टोटल मॉड्यूलेटेड पावर। आंसर इज C, ऑप्शन C is the correct answer for this signal, this question। Okay, now next question, for an AM total sideband power is given by 200 watt। Okay, now total sideband power is 200 watt, then P sideband power equal to 200 watt, and the with modulation mu equal to 0.5। find साइड कैरियर फ्रीक्वेंसी पावर एंड द टोटल पावर। नाउ टोटल साइडबैंड पावर क्या होती है, PC इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2, PC इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू टोटल साइडबैंड पावर। एम्प्लाई दैट PC इंटू म्यू इज 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 200 वाट ऑलरेडी गिवन इन द साइडबैंड पावर। ओके, नाउ तो ऑन सॉल्विंग इट दैट PC इक्वल टू 200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.25, क्योंकि 0.5 का होल स्क्वायर इज 0.25। ओके, 0.25 इंटू 100 दैट इज 4। ओके, और देन 8 इंटू 2 तो 4 1600 वाट। दिस इज द टोटल पावर, सॉरी कैरियर पावर, एंड द टोटल पावर इज साइड बैंड PT इक्वल टू क्या होती है, कैरियर पावर प्लस का साइड बैंड पावर। सो 1600 प्लस का 200 दैट इज द 1800 वाट पावर इज टोटल पावर ऑफ द सिग्नल, ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। 1800 will be the total power। Now take next example, a carrier signal of 10 cos 4 pi into 10 raised to power 5 t is AM modulated by a message signal। जब भी मैं MSG यूज कर रहा हूं ये मैसेज सिग्नल के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ। ओके, तो मैसेज सिग्नल ऑफ 6 cos pi into 10 raised to power 4 t, find modulation index। These questions are very easy। और ये ही इस तरह के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन DMRC JEE में के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन DMRC आस्क करती है इससे क्वेश्चन। तो देखो कैरियर सिग्नल पावर कितनी है,
Okay, now this is the carrier signal. My carrier signal is 10 cos of 4 pi into 10 raised to power 5t, and the message signal is mt equal to 6 cos of pi into 10 raised to power 4t, and carrier signal amplitude is AC equal to 10 volts and the AM equal to message signal volts. Now here K is not mentioned, so जब Ka और कुछ भी नहीं दिया जाए तो modulation index by default mu equal to होता है AM by AC. Okay, AM is 6, AC is 10, that is modulation index is 0.6. Okay, so this is regarding modulation index. Okay, thank you guys for watching this video, and like, share and subscribe the channel. And if you have any doubt regarding this modulation and in last lecture, please mention in comment section so that I can take these doubts in next lecture. Okay, thank you guys.